میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں میں نے شروع کیا ہے محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے بشرا بی بی تک. جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو پتہ چلا کہ اس سیٹ پہ عزت ملتی ہے, اس سیٹ پہ پیسہ ملتا ہے, تو انہوں نے اپنی بیگمات کو لینا شروع کر دیا. جب خواتین آگے آئیں میدان میں, محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے لیے کام کیا, مریم نواز نے اپنے باپ کے لیے کام کیا ہے نا. جب عورتوں کو ان عورتوں نے اپنے خامند, اپنے اپنی بچے, فیملی کو اپنی فیملی کو سروائیو کے لیے سروائیو کے لیے, اب آخر میں مجھے اس طرح خیال آیا کہ جس وقت میں نے میڈم کو دیکھا, میں کہا اے بھی آ گئے نے. آج قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں, ان کا یہ ہے سالگرہ کا دن ہے, یعنی 25 دسمبر ہے. تو میرے ساتھ صحافی پلس سیاستدان میڈم کنول نسیم صاحبہ موجود ہیں, رکن پنجاب اسمبلی بھی رہ چکی ہیں. ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے دنیا بھر میں کہ سب سے کم عمر ترین اگر کوئی وزیر اعظم ہوئی ہیں خاتون, تو وہ پاکستان کی ہوئی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. اور اب پنجاب کو آپ دیکھیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, پھر بھی خواتین کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہمارے حقوق نہیں مل رہے. تو صحافی ہوں اور اوپر سے سیاستدان ہوں تو ان کا تجزیہ تو بہت ضروری ہوتا ہے. تو میڈم کیوں یہ سوال خواتین بار بار کرتی ہیں ہمیں حقوق نہیں ملتے, اور پاکستان میں خواتین کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا؟ آپ دیکھیں پہلی وزیر اعظم بھی محترمہ بنی, قائد اعظم کی اس پاکستان میں آپ کو بات شروع کروں گی کہ ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے یہ ہمیں تحفہ دیا اور ہمارے لیے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, اور آزادی کی قدر ان سے پوچھیں جو کشمیر میں اور دوسرے جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے ہم سے سوال کیا, اور قائد اعظم نے ویری فرسٹ ڈے فاطمہ جناح کو سیاست میں شریک کیا, اور انہوں نے خواتین کو کہا کہ آپ اخبار پڑھا کریں تاکہ آپ کو نالج ہو سیاست کے بارے میں. پھر ہم بیگم رانا لیاقت علی کی بات کریں گے. انہوں نے بھی بڑا کام کیا, اور وہ گورنر سندھ رہی, اور انہوں نے افواہ بنائی, سوسائٹی بنائی جس میں خواتین کے لیے اسپیشل یہ تنظیم نے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ کرسچن خاتون کا ایک بیان ہے کہ وہ عورتوں کو لے کر چلتے تھے قائد اعظم, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ہر جگہ خواتین کو آگے رکھا. جو کچھ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جدوجہد, آپ نے کہا کہ ایک خاتون چھوٹی سی عمر میں وزیر اعظم بنی. آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, وہ وزیر اعظم جو تھی ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین سیاست میں آئی, لیکن جو خواتین سیاست میں الیکشن لڑتی ہیں ہمارے ملک میں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, وہ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, بڑے باپ کی بیٹی ہیں. ہمیں اس بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے محسن صاحب کہ ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے 40,000 خواتین کو سیاست میں لائے. ان کا نام بھی بتا دینا. پرویز مشرف صاحب, ٹھیک. انہوں نے جب ہم مسلسل بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یا نواز شریف صاحب سے, جب وہ یا میراث خالی سے, میں نے خود ایز اے جرنلسٹ ان سے کویسچن کیا کہ خواتین کی مخصوص نشستیں کب بحال ہوں گی, تو ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ تو تھرڈ میجورٹی نہیں ہے یا ہم مجبوری ہے. لیکن اس مجبوری کو ختم کیا پرویز مشرف صاحب نے, اور وہ جو پورے دنیا میں یہ تصور تھا کہ پاکستانی عورت صرف کھانا بنانا جانتی ہے یا بچے پیدا کرتی ہے, وہ قانون سازی میں یا ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتی, وہ تاثر دیا گیا. چونکہ وہ تاثر یہ تھا کہ جو قائد اعظم نے تاثر دیا تھا, جو قائد اعظم نے پاکستانی عورت کو جو عروج دیا تھا, جو کانفیڈنس دیا تھا, جو اعتماد دیا تھا, ہمارے سیاستدانوں نے سو ختم کر. چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں بھی خواتین لڑی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ایکٹ ہوا پھر ہر جماعت نے, ساری جماعتوں کی میں بات کر رہی ہوں, پرویز مشرف کے بعد جو بھی ہمارے یہ پرویز الہی صاحب نے دیا تھا, کتنی زیادہ پرویز مشرف کے کہنے پہ زیادہ عورتوں کو اہمیت دی, پھر وہ منارٹی میں بھی خواتین کو بھی خصوصی, پھر ایک عورتوں کو 5 خواتین کو یہ بھی دیا کہ ان کو اس میں رکھا گیا, وزارتیں ملی. لیکن اس کے بعد دوسری پارٹی آئی, اس نے خواتین کو کم کرنا شروع کر. اب میں نے خود الیکشن لڑا ہے پرویز مشرف کے دور میں, اور میں نمبر 1 تھی,
काउंसलर्स का जब मैंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हमने 15 औरतों के मुकाबले में नंबर 1 थी। हाँ। जब और उस वक्त भी पैसे का इतना नहीं था मोहसिन साहब, हाँ। पैसे का इतना रवाज नहीं था। मुझे खुद ही पता है कि आज से 20 साल पहले लोग खुद ही बैनर लगाते थे, खुद ही देगे पका के खान, छोटे लेवल पे था, इलेक्शंस होते थे। अब मैं ये समझती हूँ कि अब औरतों को एक, अब जब इन जागीरदारों और सरमायादारों को पता चला कि इस सीट पे इज्जत मिलती है, इस सीट पे पैसा मिलता है, तो उन्होंने अपनी बेगमात को लेना शुरू कर दिया। और उसमें अब अगर एमपीएस की लिस्ट देखें, नून लीग की हो या दूसरी जमातों की हो, अब तहरीक इंसाफ के बारे में तो खैर वो नहीं मैं इतनी वजूह से कह सकती हूँ, सुना उन्होंने अपने अहदेदारान को सीटें, लेकिन फैमिलीज तो वही है, फैमिलीज तो वही ज्यादातर वही है, फैमिलीज को दी। हाँ जी। अब एक आम औरत जो जिसमें उस आम औरत का टैलेंट खत्म हो जाता है जब उसके पास पैसा ना हो, उस आम औरत का वो टैलेंट खत्म हो जाता है, उसके पीछे बैकग्राउंड ना हो, कोई लॉबी ना हो। तो मैं ये समझती हूँ कि अब भी मैं देखा है, मैं बर्मिला कहती हूँ कि चैम्बर्स में मैं जाती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मर्द हजरात बोलते हैं, बड़ा बढ़ के बोलते हैं, हर चीज में हिस्सा लेते हैं, लेकिन खवातीन को फिर भी वो जो खवातीन है वो भी 2 का उन्होंने कोटा उन्होंने दे दिया है, तो 2 खवातीन जो हैं वो बोल लेती हैं। इसी तरह ये लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें नहीं, लेकिन एक जानिब आप माइंड ना कीजिएगा, एक जानिब आप कहती हैं खवातीन बराबर चीजें, और दूसरा कोटा फिर क्यों फिर आए? नहीं वो आती है ना, लेकिन खुल के उनको मैं आपको मोहसिन साहब क्या बताऊं, वो आती है लेकिन उनको खुल के मौका नहीं दिया जाता कि वो अपने टैलेंट को आगे ला सके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, हो सकता है डिफरेंट हो। यानी किस फील्ड में नहीं मौका दिया जाता कि अपना सहाफत में, सियासत में, ये इंडस्ट्री में? अब ये देखिए ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा हूँ, ताकि जब हम एक छोटे से इशू पे आ जाएंगे ना तो वो इशू खत्म नहीं, इशू नहीं, मैं तो हम छोटे छोटे इशू बड़े बनते हैं ना। अब देखे ना, सहाफत कोई छोटी बात तो नहीं है ना, हमारी जद्दोजहद तो साफ यही है ना फिलहाल। लेकिन तो वो रेशो भी तो मीडिया में आप देख लेना फिर। नहीं, मीडिया में अच्छी खासी खवातीन आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक पहले था जब मशरिक अखबार होता था या नवाए वक्त होता था या जंग होता था, एक लेडी रिपोर्टर होती थी, लेडी रिपोर्टर का काम सिर्फ गवर्नर की बेगम को कवर कर रहा होता था। अब तो क्राइम भी कर रही हैं, आप देखें नहीं देखें, अगर आपको आप बार बार बात करें जगीरदार ये वो, मरियम नवाज मेहनत करके नहीं आई, नहीं सियासी जद्दोजहद, मोहतरमा बेनजीर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्या किसी और खतून को इस तरह किया गया पाकिस्तान में इतने बड़े पोर्टफोलियो? इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहिबा का कहना बिल्कुल ठीक है कि मैं फूलों की सेज नहीं हूँ, आपका दरिया पार करके नहीं आई हूँ, लेकिन उसके पीछे उसके बाप का हाथ था, ये माने। उसके पीछे वो उस बाप का हाथ था जो मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रह चुका है। आपका नुक्ता ये है कि जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उन्हें अगर कुछ दिया तो वो एक डिक्टेटर ने दिया, जनरल मुशर्रफ ने दिया, बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने दिया। तो आप देख लेना, बाकी किसी पॉलिटिशियन ने देखे ना, अगर बेनजीर सियासी जमातों ने भी कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा को मिला था तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब, यानी इमरान खान जैसे मकबूल लीडर ने भी उस तरह खवातीन को नहीं दिया आपकी नजर में? बल्दियाती इंतखाब भी नहीं बल्दिया देखे ना, हर मैं यही कहती हूँ कि एक कौमी असेंबली का जो हल्का होता है उसमें 5 लाख वोटर होता है, ठीक हो गया, अच्छा 2.5 लाख हो गया एमपीए का। अब एक यूनियन काउंसिल में आपका जो इलाका होता है वो 35,000 के वोटर होते हैं, और उसमें एक इलाके में छोटा सा इलाका होता है, तो एक यूनियन काउंसिल होती है, वहां पर एक चेयरमैन होता है, उनके मेंबर्स होते हैं। अच्छा, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, और कई केस होते हैं कि वो छोटे छोटे मसले होते हैं, कोई निकाह का, कोई शादी का, कोई झगड़े आपस की, कोई प्रॉपर्टी का, कोई फैमिली मैटर्स होते हैं, तो वो वहां पर आके हल हो जाते हैं। अब एक एमपीए की ड्यूटी नहीं है कि वो छोटे छोटे इतने लोगों को मिल सके, तो वो उन्होंने कामयाबी नहीं होने दिया। हर जमात डरती है, हर जमात डरती है, यानी मकबूल तरीन लीडर भी डरता है कि शायद मेरा वोट डिवाइड हो जाएगा। हालांकि अब देखे ना, जैसे महंगाई है साफ तौर पर, अगर एक यूसी पे लेवल पे काम, अब देखे ना प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई किरदार नहीं है, खवातीन को भी उसमें देना देखे ना, अगर आप देखे ना, हर आदमी ने अपनी मनमानी कर ली है, जिसका जो जी चाहता है। इस तरह देखें, मरियम नवाज साहबा में कोई शक नहीं कि काम करी, लेकिन वो हर चीज पे कंट्रोल नहीं करते। एक सिस्टम होता है, पूरी दुनिया में एक सिस्टम, और ये जो पंचायत सिस्टम है ना, पाकिस्तान से पहले का है ये,
हम्म, उसको पंचायत सिस्टम कहते थे, 1958 से चल रहा है ये। ठीक। उसको पंचायत पे अयूब खान ने बनाया, फिर इन्होंने, इसका मतलब वो डिक्टेटर बनाते। हाँ, अब आप नहीं, लोकल बॉडीज में जितनी खवातीन आई उन्हें परफॉर्म किया ना, हाँ, वो नाज़िम भी बनी, वो नायब नाज़िम भी बनी, वो काउंसलर भी बनी, वो छोटे इलाकों से भी आई, जिसके बारे में ये क्या था कि सिर्फ वो गोबर थाप सकती है और कोई हम्म, काम नहीं कर सकती, हम्म, छोटे छोटे इलाकों से आई है ना, वो पाकिस्तान की औरतें थी ना। हम्म। उसके बाद देखे औरतें गायब हो गई, उनका टैलेंट भी खत्म हो गया, चंद औरतें रह गई। टैलेंट है, क्यों नहीं है टैलेंट? नहीं अगर मतलब है कि उनको जो जो मौका मिला था, यहाँ देखें 190 मिलियन पाउंड टैलेंट ही है ना वो। फिर जो मुखालफिन फिर एक दूसरे की खवातीन पर जो कहते हैं कि खवातीन करप्शन कर रही हैं, जिस तरह फराह गोगी का नाम आता है, मरियम देखें नवाज पे भी केस बने देखें हैं। फरिया गोगी जो थी वो सियासी खातून तो थी नहीं, हाँ, राइट। बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी, आप फिर एक एक नई नहीं नहीं बात नहीं 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 देखें, नहीं, मैं सिर्फ एक खवातीन, मैं आप कहते हैं टैलेंट मैं जाया हो जाता है। अब आप मैं कहता हूँ कि जिसको जहाँ मौका मिलता है वो सुन ले टैलेंट सुन निकल कर ले नहीं सामने आता। मेरी बात सुन ले, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, हाँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने शुरू किया है मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके बुशरा बीबी तक, अच्छा, राइट। कितने छप गया है? नहीं छाप रहा है उसे, अच्छा, बड़ा उसमें कोई रिसर्च दो हो, तीन गल्ला दस देना। नहीं रिसर्च हो रहा है उसमें। ये मैंने लिखा है कि जब मोहतरमा ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ फिर की करोगे? की रोक दिता जाए नहीं छपा? नहीं 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 रोक नहीं सकता, इसमें मेरी रिसर्च है। आपके अपने मैगजीन जी में? मेरे अपने मैगजीन तो में अगर मेरी मैगजीन साहिबान, वो पूरी मशीनरी गायब कर दी नहीं गई नहीं तो नहीं फिर नहीं 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 मैंने इसमें ये नहीं लिखा, मैंने इसमें ये लिखा है कि जब खवातीन आगे आई मैदान में, मुहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम के लिए काम किया, हाँ, बेगम लियाकत अली ने राना साहब के लिए काम किया, बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भारत के लिए जुल्फ़कार साहब के नुसरत लिए, भट्टो साहबा नुसरत ने भुट्टो ने काम की, सारी वली खान की मैंने सबका लिखा है, बेगा उन्होंने काम किया। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ वाहिद औरत थी हाँ जिसने अपने खाविन को बचाया और बाहर ले, जो भी है। हाँ जी फिर मरियम नवाज ने अपने बाप के लिए काम किया, हाँ किया है ना। जब औरतों को उन्होंने, इन औरतों ने अपने खाविन, ठीक अपने है, अपनी बड़े, फैमिली को ठीक अपनी फैमिली के को सरवाइव के लिए के जंग लगा, सरवाइव के लिए। अब सर्वाइवल की जंग लड़ी। आखिर में मुझे इस तरह ख्याल आया कि जिस वक्त मैंने मैडम को देखा, मैं कहा ए भी आ गए ने, भी आ गए नहीं? अच्छा यस, तो इसका मतलब है कि औरतें ढाल बन गई। हाँ, मेरी बात को फॉलो करो। अच्छा मैं कहा औरतें ढाल बन गई, मैं कहा हुन ए भी आ गई है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, इस बात में भी रियलिटी है। ठीक बेगम कुलसूम नवाज का भी कोई वो इलेक्शन, अगर नवाज शरीफ कामयाब था तो हाँ, वो बेगम कुलसूम नवाज शरीफ की वजह से कामयाब था, क्योंकि वो बड़ी अच्छी खातून थी, उन्होंने काम किया। हाँ, मेरा हाँ, उनसे फिर राब्ता आपने था, ठीक मैं जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कहा ए भी आ गई, इसका मतलब है कि मर्दों को कामयाब करवाने में या उनको निकालने में या उनको रिहा कराने में औरतों का हाथ है, ये तो मान लें आप। यानी अब बुशरा बीबी कामयाब होती दिखाई दे रही नहीं है। ये बात की बात है, अच्छा, लेकिन वो आई तो अलीमा खान साहबा भी हैं, वो वही ना, तो बहनें आ फिर गई ना। कायदे आजम का फिर पाकिस्तान समीरा बीबी आ अब गई, सुन लेना, फिर समीरा बीबी आ गई, देखे ना बड़ी हिस्ट्री है। चौधरी साहब की चौधरी अहलिया। साहब चौधरी साहब को जब भैंस चोरी में सजा मिली थी चौधरी जहूर लाई को, हम्म, तो फिर समीरा बीबी भी आई, कैसरा बीबी भी आई, सारी खवातीन आई ना, हम्म, सड़कों पे आई। अब चौधरी परवेज लाई को बचाने के लिए समीरा बीबी और कैसरा बीबी आई कि नहीं आई, दोबारा आई हाँ। ये पूरी हिस्ट्री है यार, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। चलें, ये तो पॉडकास्ट का जो है दुरानिया तवील हो जाएगा। लास्ट में फिर तो ये है कि कायदे आजम का पाकिस्तान कहाँ से होता कहाँ? अब खवातीन के हाथ में आया लेकिन ये है है। नहीं, खवातीन के हाथ में, हम मर्दों के खिलाफ नहीं, हम उनते इसको खुश हो जो नहीं, हम खुश हैं और हमारे घरों में इस दिन में बाकायदा हलवा बनता है ठीक और तकसीम होता है हाँ हमारे घरों में, क्योंकि केक तो नहीं भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर खवातीन करेंगी। कायदे आज़म जिसने, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए कि हम इतना बोलते हैं, हाँ, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है ना, जब हम इतना बोलते हैं, इतनी अपनी आज़ादी से अपनी राय का इस्तेमाल करते थे। और हमारे साथ और भी बहुत सी खवातीन हैं सियासी जद्दोजहद में शामिल है और इंशाल्लाह रहेंगी, हम मायूस नहीं, हम बहुत खुश चलें, हैं हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से। ताला दो आपसे गुफ्तगू करके इस मौजू पर मुझे जो समझ आई है, आप भी सवाल लाजमी कीजिएगा। बाद में हम आपके सवालात पर मबनी भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये हो गया कि बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए। होने चाहिए, और बलदियाती इंतखाबात जब जब हुए, क्या किसी सियासतदान ने करवाए, किसी सियासी जमात जो हुकूमत में थी उसने कराए, या डिक्टेटर ने करवाए लेकिन किए, अयूब खान ने और कराया ख़वातीन परवेज का क्या मुशर्रफ। किरदार, जिस तरह इन्होंने एक हिस्ट्री बयान किया। हम आर्टिकल कदों तक छप जाएगा? तानू जल्दी लग हो जाएगा। अच्छा चलो, जल्दी लभ जाएगा तो फिर खसूसी मालूमात तुहाडे तक शेयर करांगे। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।